Hello, friends. Welcome to this fantastic podcast. Today, I have a very special guest with me. The reason why he's very special is because he is very dear to me. He is my mentor, Shri Amol Wagle, and Hi. if I speak about him, I can speak volumes, and the conversation will not. I will not stop talking. Yeah. So instead of me telling you his story has been exciting, very interesting, right? From his journey from his childhood to now, where he's mentoring so many people like me, and he's given direction to so many lives. You know, when we have a toothache, we go to a dentist, right? So whenever we have a problem of any sort, we go to the expert. But for me, like any kind of problem I have in life, he's my life expert. Yeah, so I'm very happy, Bhaiya, to have you here. Same here, Shreyans. Lovingly, I call him Bhaiya. He's like my elder brother. So it's a privilege to host you on this podcast, Bhaiya. Same. So, is it going to be a conversation or it will be a sting operation on me? It's a conversation, but we are hoping to reveal a lot of secrets. Let me hold my breath. So I want to start this journey like right from your childhood, right? So I don't know too many stories of your childhood, but थोड़ा ऐसा secrets कहीं से सुनने मिला है कि आप बहुत बदमाश हुआ करते थे, बहुत मस्ती करते थे, फिर अच्छा सुना है. और थोड़े से rough and tough fights भी किए हैं आपने life में. So how was your childhood, and how has that shaped the way you are as a person? See, if you see, till 7th standard I was very shy. मैंने कभी physical fight किया ही नहीं life में. In fact, I used to get bullied by others till 7th standard. And from 8th standard, I don't know what happened. That 180-degree shift आया. पता नहीं इतना bully मैंने सहा है कि शायद वो spring action से बाहर आ गया फिर. And I started having fun in life. So you had like fights and all? Yeah, physical fight. A verbal fight मैंने 8th standard के बाद किया ही नहीं. I don't believe in verbal fight. क्योंकि क्या होता है, बोल के ना मन में रह जाता है. तो अच्छा फिजिकली कुछ करके खुद ही खत्म करो. ये मेरी सोच थी तभी. Right. So 7 तक मुझे अभी भी याद है, मैं एकदम ही साइलेंट लड़का था, एकदम ही. In my school, my friends used to call me Sasa. Sasa means rabbit. Right. जो पत्ता गिरे तुम्हारे ऊपर तो भी डरे, ऐसे. My God. ऐसे था मैं. 8th standard से पता नहीं क्या हो गया, but वो suddenly. So, like have there ever been moments like you had a fight and like इतना बड़ा कुछ fight करके आया कि ऐसा लगा कि I shouldn't have done that, या कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया, ऐसे कुछ हुआ है? हाँ, ऐसे बहुत हुए. रिग्रेट्स मेरे लाइफ में बहुत हुए जब तक मैंने ये आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स नहीं किया. तब तक रिग्रेटफुल मोमेंट्स बहुत है. नहीं करना चाहिए था, ऐसे मोमेंट्स बहुत है. एडिक्शन से लेकर फाइट से लेकर, so you प्लेइंग प्रैंक्स, वो सब. Because it's remarkable the journey that you have now, right? So Amal Bhai is an art of living teacher. He's traveled to multiple countries across the globe, and he's taught art of living programs, and he's brought this transformation in so many lives, right? So I think there will be nothing better than documenting his transformation today. So then how did things change? Like, so till school you were a brat, right? Yeah. And मैंने तो आपका वो भी स्टोरी सुना कि बचपन में you wanted to be a bus conductor. अच्छा, ये सब इनको निकाल लिया तूने. Yeah, of course, बचपन में हर एक का कोई ना कोई सपना होता है. So what I used to see that everybody is moving towards conductor, asking him. He is the main person in that bus. So I wanted to become bus conductor because I used to like that sound, कटर वो करते हैं ना वो. Right. So bus conductor बनना था. फिर I studied in vernacular medium, Marathi medium. So I was not knowing the meaning of curfew. Right. I used to stay in जोगेश्वरी, जहाँ पर काफी राइट्स होते थे हिंदू मुस्लिम्स में. तो वहां मैंने ऐसे सुना बातों में कि कर्फ्यू लगा, अभी कर्फ्यू लगा है, बाहर जाओ मत, सब डर के घर में बैठे. सो आई थॉट कर्फ्यू मस्ट बी समथिंग वेयर ऑल पीपल दे गेट स्केर्ड ऑफ कर्फ्यू. सो somebody asked me, what do you want to become in life? I said curfew. तो मुझे कर्फ्यू बनना था बचपन में. इंटरेस्टिंगली आज आप लोगों की लाइफ से अलग अलग स्पेसेस का कर्फ्यू निकाल रहे हो. सो ऐसा ही था, मतलब चाइल्डहुड इसी मस्ती में ही गया. कॉलेज डेज भी. And you were into chess also. हाँ, yes.
So ये chess के लिए कहाँ से लव आया and how did you like get into chess? My parents used to play chess and I used to watch them while playing. So वैसे interest develop हुआ. In if you see in my age rather, there was no coaching as such. कुछ Right. होता नहीं था coaching. अभी chess coaches होते हैं, अलग-अलग trainings होते हैं, कैंप्स लगते हैं चेस के, वैसे कुछ था नहीं तभी. सो उनको पेरेंट्स को खेलते हुए देख के मैं सीख गया एंड स्टार्टेड प्लेइंग. सो मेरे दो सीनियर्स थे, हमारे कॉलोनी में रहते थे. दे टुक मी टू बॉम्बे चेस एसोसिएशन फॉर द टूर्नामेंट और ऐसे चेस का जर्नी शुरू हो गया. Right, and then you became an internationally rated chess player, FIDE rated chess player. फेडरेटेड चेस प्लेयर. So वो journey कैसा रहा? How many challenges, difficulties? I faced lot of difficulties because there was no mentor. Right. सो मेरे दो फ्रेंड्स थे, प्रसाद और महेंद्र. टाइमली वो मुझे गाइड करते थे. मैं थोड़ा बोलते हैं ना वो बुक से फोबिया है मुझे अभी भी. तो मैंने कभी थ्योरी स्टडी नहीं किया. आई टू आस्क देम प्रैक्टिकली ये ओपनिंग में क्या करना होता है, वो ओपनिंग में कैसे खेलते हैं, एंड दे टू गाइड मी वर्बली. सो आई टू फॉलो देम एंड आई टू गेट गुड रिजल्ट्स. राइट. लिसनिंग अच्छा था, रीडिंग मेरा खराब था, इतना अच्छा नहीं था. पर मैंने तो देखा सारे चेस प्लेयर्स इतनी बुक्स लेके बैठे रहते हैं, दे कीप क्रैमिंग ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, वो सब के बिना ही you हाँ, वो सब के बिना ही. सो ओपनिंग चेस हैज मैक्सिमम बुक्स. कोई गेम पे रहेगा तो सो ओपनिंग थ्योरी इज वेरी वास्ट. राइट. So somehow I used to struggle in opening phase of the game. Right. Middle game and end game I used to manage on my own. Right. शायद लाइफ के साथ भी यही हो, इसलिए मेरा ओपनिंग लाइफ का थोड़ा स्ट्रगल गया है. मिडल गेम अच्छा जा रहा है, होपिंग फॉर द गुड एंड. I am sure it will be great, sir. Everything, because you have brought so much happiness in other people's lives. I think it always comes back. No? Whatever we give it, it just comes back. So then chess was your first love? Yes. Chess is my first love. And you still continue playing chess? Yes. I play online now, but because I don't get time to prepare for tournaments, और उतना समय निकालना अभी it's quite challenging. Right. So online खेलता हूँ. I treat chess like a hobby also, passion also. That's it. Wow, very nice. Yeah. And so this was school and college where you started loving chess, and also you started picking on fights and then धीरे-धीरे from this somebody who used to pick on fights, you came into spirituality, right? Which is a very big transition. So ये मतलब कैसे हुआ? मतलब how did this journey happen? I don't know, but मुझे ऐसा लगता है हर व्यक्ति में कहीं एक inner voice है, वो रोकता है हमको time to time जब भी हम गलत करते हैं. Sometimes we listen to that voice and then we are peaceful and peace around us, and sometimes we rebel, we don't listen to that voice and then we regret. Right. So I was in this category. मैंने जब भी किसी को मारा है या गाली दी थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था अंदर से. उस रात को सोने में थोड़ा तकलीफ होता था. And I wanted to get rid of that feeling. Right. कि ये क्या है, चलो मारते हुए मजा आ रहा है. Because I had, if you see, there are a lot of youngsters, they have having immense energy, but youngsters they don't know how to channelize that energy. Right. फिर वो एंगर के रूप में आता है, मस्ती और अलग रूप में आता है बात, जैसे नहीं आना चाहिए. और वो वायलेंस में किक भी मिलता है ना कई बार कि लाइक यू आर जस्ट रिमूविंग सम कुछ पेंट अप है, वो उस वक्त निकल रहा है. एब्सोल्युटली. बिकॉज इफ यू सी इन अवर चाइल्डहुड, माय चाइल्डहुड, हमारा हीरो था एंग्री यंग मैन, अमिताभ बच्चन. राइट. मतलब इमेज ही कैसा था, द इफ यू वांट टू बी अ रियल मैन यू हैव टू बी एंग्री. राइट ना, कभी भी गलत हुआ बॉटल खोलो, मुंह को लगाओ, ये 10 लोगों को जाके मारो. किसी ने ये हमको स्कूल में कॉलेज में नहीं सिखाया. कुछ गलत हुआ बैठ के ध्यान करो, यू विल बी सेटल्ड, देन यू कैन टेक रैशनल डिसीजन. राइट. सो वो गड़बड़ हुआ है हमारे बचपन से. मेरे टाइम के आई थिंक सभी यंगस्टर्स ने यही फेस किया है. राइट. सो ये बाद में बात निकली है तो all these habits also you said lot of other habits. So drinking and all of that also like you've done at that particular point in life and okay, you name it, I did it. सब किया है. So सब तरह का करके देखा, बट अभी आज जो कर रहा हूँ वो लगता है मुझे it has no side effect. Spirituality gives you the natural high which has no side effect. Health and wealth दोनों अच्छे से रहेगा. राइट. सो आई थिंक भैया मतलब अभी तक आपकी जितने भी स्टोरी सुनी है, यू आर एग्जैक्टली द पर्सन हुम लाइक नोबडी कैन फिट इनटू द थिंक ये कभी स्पिरिचुअलिटी करेंगे. इनफैक्ट हमारे इतिहास में है ना ऐसे, जैसे वाल्मीकि ऋषि थे, वो पहले वाला कोड़ी थे. मतलब इतिहास में भी मेरे जैसे लोग हुए हैं. आई एम नॉट द ओनली वन.
But how did this happen? Like, how did you get into spirituality? Well, it was an accident. Okay. Yeah. मैंने मेरे फ्रेंड से सुना था काफी अबाउट गुरुदेव श्री रविशंकर जी एंड आर्ट ऑफ लिविंग, व्हाट इट डज टू पीपल. Right. तो मुझे मैं आई यूज्ड टू रन अवे फ्रॉम दैट पर्सन, माय फ्रेंड. तो एक बार ऐसे ही हुआ जब क्रिकेट खेल रहे थे, आई यूज्ड टू प्ले कांगा लीग. सो जब कॉलोनी में क्रिकेट खेल रहे थे तो स्लेजिंग होता है, स्लेजिंग होता है, वी बिकम वायलेंट. सो ऐसे ही हुआ तो गलती से मेरी बैट उसके बॉल के बजाय उसके सर पर पड़ी. एंड दैट पर्सन वाज हॉस्पिटलाइज्ड एंड आई प्रेड. नाउ whom will you pray? तो मैंने मेरे फ्रेंड से सुना था गुरुदेव श्री रविशंकर जी के बारे में. सो आई प्रेड टू हिम. आई सेड यू सेव दैट बॉय, आई विल डू द कोर्स. एंड आई डिड द कोर्स. ही सेव्ड द बॉय. सो ऐसे आया मैं यहाँ पर. Wow. Yeah. So you don't know, nature has its own way how Yeah. it will take you to the right track. Right. So भैया, this is very interesting because often हम लोग जब spirituality के बारे में बात करते हैं तो आजकल there is this whole trend कि meditation is very important. You can download an app and you meditate. But like you said that you had a friend and he was talking about a guru, right? So he's talking about Gurudev Shri Ravi Shankar ji. So how important was it to have a guru? Like मतलब या आज के डेट में भी अगर किसी को चाहिए तो एक मेडिटेशन ऐप पे भी तो मेडिटेशन कर सकते हैं, राइट? तो एक गुरु का होना जीवन में क्या जरूरी है क्या? When we meditate on the app, no, it can give you experience on the surface level. Of course, it will give you experience, but on the surface level. But if you want to go deeper, you need to have a guru in life. जैसे कि डिक्शनरी में सभी वर्ड्स हैं, पर उससे कोई बोलना नहीं सीखता. राइट. वर्ड्स क्या है ये पता चलेगा, राइट. पर वर्ड्स को फ्रेम कैसे करना है, सेंटेंस कैसे बनाना है, वोकैबुलरी कैसे बढ़ानी है, उसके लिए तुमको टीचर की जरूरत है. करेक्ट. वैसे ही लाइफ में गहराई में जाना है, सेलिब्रेशन बनाना है लाइफ को ना, तो गुरु की जरूरत तो है ही. एंड इट्स नॉट, मेनी पीपल हैव दिस रॉन्ग नोशन. इफ यू फॉलो गुरु यू बिकम डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन. इनफैक्ट इट इज अदर वे अराउंड. इफ यू फॉलो एनी गुरु you are independent. You are not dependent on external factor or external high to celebrate your life. Right. But you don't become dependent on the guru also? Now my guru made me independent, and that's what I love about him. Right. So his love drags me towards him, right, not the dependency. Right. Yeah. So भैया फिर ना आजकल, because there is also this thing that in news we see often that there are people who do wrong things in the name of religion, or some people become fake gurus. तो वो देखकर फिर मतलब यूथ थोड़े से टर्न ऑफ हो जाते हैं इस आइडिया से to have a guru or to have a mentor. So like how would you address that kind of issue? I just want to tell you one thing. किसी एक का मोबाइल फोन हैक हो गया, फॉर एग्जाम्पल सैमसंग का, तो क्या सब यंगस्टर्स ने सैमसंग का फोन यूज करना बंद कर दिया क्या? नहीं ना. Isn't it? Yeah. So वो कोई अगर एक जीमेल अकाउंट किसी का हैक हो गया, लोगों ने जीमेल यूज करना बंद किया क्या? सेम वे हर प्रोफेशन में अच्छे लोग होंगे जरूरी नहीं है. राइट. एंड यू नो व्हाट, दिस स्पिरिचुअलिटी, गुरु इज द ट्रस्टेड प्लेस नो इन सोसाइटी. इसलिए रावण को भी गुरु का भेष, साधु का भेष लेके आना पड़ा ना सीता का हरण करने. डॉक्टर बन के नहीं आया ना रावण. राइट. सो कुछ है रावण घूम रहे हैं जो गुरु के भेष में आएंगे. राइट. कहाँ लक्ष्मण रेखा खींचनी है, वो क्रॉस नहीं करनी है, वो हमारे ऊपर है फिर. राइट. पर फिर कैसे आइडेंटिफाई करें, क्योंकि इट्स like there are a lot of people watching this podcast, so some people will maybe following different paths. So is there any way to find out what is authentic, what it's is not? Simple. Yeah, this question is like, how will I come to know that my stomach is full? You don't need other person to tell you that. Right. Your experience will tell you, okay, now you are done. Right. Okay, or you are at the right path. Right. You are with the right person, and this is what you wanted to experience in your life. Right. या वो मूवीज में दिखाते हैं वैसे कोई घंटे नहीं बजने वाली, पत्ते नहीं गिरने वाले, कुछ नहीं होने वाला, बट यू विल कम टू नो. राइट. अरे सही जगह है भाई, ये दिस इज द प्लेस आई वाज लुकिंग फॉर. राइट. और वो हो जाता है. आपके साथ कैसे हुआ? एनी पर्टिकुलर मोमेंट वेयर यू फेल्ट दैट आई एम एट द राइट प्लेस, दिस इज द राइट पर्सन? या ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द प्रोग्राम आर्ट ऑफ लिविंग में, व्हेन आई डिड माय फर्स्ट मेडिटेशन ऑफ माय लाइफ, इट वाज सो डीप, आई टेल यू. मैं बोलता हूँ ना, वर्ल्ड का लेजीएस्ट पर्सन भी होगा ना तो भी मेडिटेशन नहीं करने के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है उसके पास. बिकॉज व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिट एंड डू नथिंग. कुछ करना ही नहीं है उसमें. मतलब कितना भी तुम लेजी रहो, इनफैक्ट तुम्हारे लिए और अच्छा है. राइट.
It's a lazy man's dream come Yeah, true. actually, मतलब क्या करना है, बस आंख बंद करके बैठना है और ऐसा मस्ती है लेना है अंदर से, हाँ, जो बाहर चीजों पे है नहीं. True. Yeah. In fact, for me also, I think, मतलब I also came from this kind of an intellectual background where I used to doubt everything. Yeah. और आपने जैसे बोला ना मीडिया का रोल है, तो मैं भी न्यूज़ चैनल में देखता था, तो मैंने कोई कभी किसी गुरु को पॉजिटिव लाइट में मीडिया में कवर होते हुए देखा ही नहीं. Yeah, तो देन व्हेन आई फर्स्ट डिड माय आर्ट ऑफ लिविंग प्रोग्राम, आई फेल्ट कि यार ये तो बहुत अच्छा था. मतलब कभी किसी ने ऐसा पॉजिटिव साइड तो दिखाया ही नहीं. absolutely. और फिर भी था मेरे मन में कि आई हैड अ लॉट ऑफ डाउट्स. फिर व्हेन आई मेट गुरुदेव फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड आई जस्ट फेल्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड. लाइक आई फेल्ट दैट, जैसे आपने बोला, यू जस्ट कम टू नो दैट योर स्टमक इज फुल. इट वाज दैट मोमेंट वेयर माय हार्ट वाज लाइक टोटली फुल एंड ब्लिस्ड आउट. फिर भी मैं बार बार ऐसे टेस्ट करता रहा, एंड देन फाइनली आई फेल्ट कि हाउ मच विल आई डाउट. या बिकॉज सो मेनी टाइम्स सेम सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस हैज हैपेंड इन दैट कंपनी. फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अपने एक्सपीरियंस को ट्रस्ट करना भी बहुत जरूरी है. यू कांट Absolutely, ट्रस्ट व्हाट absolutely, एवरीबॉडी absolutely. सेज. दैट वाज वेरी डिफाइनिंग फॉर मी And आल्सो. it's nice to see na, that you are benefited, and because of your many youngsters are getting benefited. राइट. Very nice, very nice. So this brings me to this question कि how ये this inspiration, right? क्योंकि ये like this is something that we share in common कि भाई हमको कुछ बहुत अच्छा लगा, so we want to give it back, right? So what inspires you to give back to society? How did you become how did you decide I'll become an art of living teacher? See, I tell you, the answer is very simple. I think there shouldn't be any inspiration to give, because giving is our nature. We need to get inspired for something which is not there in our nature. Right. Now, when we are stressed out, we cannot think of giving something. When we are stress free, when we are natural, जैसे वैसे मस्त है ना, तो देना एफर्ट नहीं लगता देने के लिए. Right. इनफैक्ट पाने के लिए, डिमांड के लिए एफर्ट लगता है. Right. And that's what I love about Gurudev Shashi Ravi Shankar ji. The way he is, from the space he's operating from abundance. I'm here for you. Take whatever and however you want. Right. And that's what, you know, फिर वो आ जाता है नेचुरली, कुछ करना नहीं पड़ता है ऐसे. Right. That's what I feel. I mean, of course, same opinion होगा तुम्हारा भी. हाँ बिल्कुल भाई. I think जैसे हम मूवी भी देख के आते हैं और कुछ अच्छा लगा तो हम कैसे जाके सबके साथ शेयर करते हैं. Absolutely. तो ये तो हमारा लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस है एक तरीके से. और वो नेचर में इतना आ गया है ना, कहीं जाके कुछ छोटी सी चीज भी टेस्ट करते हैं ना, कहीं का आइसक्रीम भी हो या कहीं का इडली भी हो, वो जाके हम 10-100 लोगों को बोलते हैं, अरे वहां जा रहे हैं ना, उस एरिया में जा रहे हैं, वहां का ये इडली टेस्ट कर. करेक्ट. कितना एफर्टलेसली आता है ना. तो ये इतनी अच्छी चीज है जो एक लाइफ को सेलिब्रेशन बना रही है. व्हाई शुड वी स्टॉप आवरसेल्फ? राइट. हाँ एब्सोल्युटली. बट वही है कि लाइक आई सेड नो, यंगस्टर्स अ लॉट, बस वही है कि ये हेजिटेशन जो आते रहता है बार बार कि शुड यू ट्रस्ट अ गुरु और नॉट. लाइक my personal opinion is that don't trust. You do the workshops, then you go meet, and only when you feel that this is the right place. Right? Like I never came with this idea that, मुझे तो पता ही नहीं था एक्चुअली आर्ट ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्राम है. मेरे को तो किसी फ्रेंड ने बोला जा कर, मैंने ऐसे कर लिया. मुझे पता होता है कोई गुरु से रिलेशन है इसका तो मैं तो करता ही नहीं. आई यूज्ड टू बी सो नेगेटिव. और फिर वो जब वो एक्सपीरियंस में आया, फिर लगा कि लाइक आफ्टर इयर्स आई सेड आई एम एट द राइट प्लेस. सो आई थिंक, I mean, it's not necessary to believe, but at least go ahead and like yeah. You do it for yourself. That's it. Exactly. That's it. अभी जैसे you said, no, spirituality uplifts you. Many people have this wrong notion. Spirituality is just sitting with your eyes closed and doing nothing. Right. Yeah, that is a small part of spirituality. Right. What is spirituality? Whatever uplifts your spirit is spirituality. Right. जैसे मैं पहले ड्रिंक्स करते, मेरे जैसे कई यंगस्टर्स करते होंगे अभी भी, वो पहले करते थे. We used to be, you know, high. आर्टिफिशियल है जो कुछ घंटे के बाद उतरता है, देन वी गेट हैंगओवर. राइट. इजंट इट? पर मैं 20 साल से आर्ट ऑफ लिविंग का कर रहा हूँ. ये ऐसा नशा है जो उतरा ही नहीं अभी तक, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है. राइट. ऐसी मस्ती है जो कोई किसी को हार्म नहीं देगी. राइट. और इसका वो अपलिफ्टमेंट भी वो शॉर्ट टर्म वाला अपलिफ्टमेंट नहीं है. वही तो बोलो, 20 साल से उतरा नहीं है ना, उतरेगा. मैं तो बोलता उतरेगा, वो नशा ही क्या है. क्या बात है. So I think all of you guys should definitely know that when you're in Bhaiya's company, his one-liners are like out of the world. So Bhaiya, so then you decided that you will become an art of living teacher. But from then on, also I see that, you know, like your journey has been very different. Like right now you're mentoring so many youngsters like me. So
मतलब how did you become like a mentor to people? मतलब I know that like you said it's in our nature, but at the same time like it's not a skill that everyone possesses. It's not so easy to like mentor somebody. So ये what is the secret behind this? I want to give this credit to all my mentees because ये मेरा strong opinion है कि अच्छे एक टीचर को अच्छा टीचर उसके स्टूडेंट्स बनाते। तो वो मेंटीज आए मेरे पास, उनको जो जरूरत पड़ी मैं था, इसके अलावा मैंने कुछ किया नहीं। आई एम जस्ट अवेलेबल फॉर पीपल, दैट्स इट। सो बिकॉज ऑफ देयर नीड, बिकॉज ऑफ देयर इंक्विजिटिवनेस टू नो मोर अबाउट लाइफ, आज ऐसे हो गया है वो। That is very humble of you. Genuinely, I'm not being modest, but that's how it is. But yeah, I think this is also so important what you said, the whole idea of being available. Yeah. मतलब हम कई बार अपने लाइफ में इतना बिजी होते हैं कि कोई शायद कभी हेल्प के लिए आता है, तो आर वी अवेलेबल? दैट्स आई थिंक मे बी द फैक्ट दैट यू आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर पीपल, एंड वो है, that's a beautiful quality to have. Nice. So yeah, I want to ask you some like जैसे रैपिड फायर होता है ना सबका, आई वांट टू डू एग्जैक्टली उल्टा। आई वांट टू आस्क यू स्लो रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन। क्या बात है? So any time in your life where like you failed and you said bas this is the end, and then after that failure only became like a very important transition point in your life, ऐसा कभी कुछ हुआ है? हाँ, बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है। I miserably failed in getting my international rating. I played kilos of tournament where I faced failure. In fact, I sometimes have to prepare sincerely, but when it time comes to present yourself or to play in tournament, बहुत miserably fail हो चुका हूँ मैं। Right. इतने बार मुझे फेल्योर आया है कि मेरे पास वो अच्छा अनुभव आया। I started chess coaching after that, कि एक अच्छा चेस प्लेयर बनने के लिए क्या अवॉइड करना चाहिए। Right. Even in my academics, I was not interested in academics. I was more into sports. Right. So इतने बार फेल हो चुका हूँ मैं मेरे कॉलेज डेज में। Right. नॉर्मली लोगों का होता है FYJC, SYJC, देन whatever the next stream you take, whatever. तो उसमें तो कई बार ऐसा होता है FYJC फर्स्ट ईयर, FYJC सेकेंड ईयर, FYJC तो ऐसा था। बट आई थिंक कई बार क्या होता है कि हम जब किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं तो वी सी के अभी वो व्यक्ति किस पेडेस्टल पे है या किस पोजीशन पे है, पर कई बार ये जर्नी चलते चलते ये लोगों को कहीं नहीं पता होता कि वहाँ पहुँचने के लिए कितनी बार गिरे भी हैं। स्पेशली यूथ दिस डेज व्हेन वी सी कुछ एक फेलियर आ गया एंड somebody just jumps off the building, right? Which is so tragic. So that's why I think this is very important कि एक बार ये भी जानना जरूरी है कि जैसे आपने बताया एक रेटिंग पाने के लिए इतनी बार फेलियर आपने फेस किया, बट यू डिड नॉट गिव अप। हाँ, गिव अप नहीं करना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए, तो फाइट बैक करते रहना चाहिए। Right. और वो फाइट बैक बिना कैसे होना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है, जो मैंने किया वो मैं बोल रहा हूँ कि वो स्ट्रगल करके नहीं लेना चाहिए, वो चैलेंज करके लेना चाहिए। राइट। और वो लोग आके नॉर्मली दे शेयर देयर सक्सेस स्टोरीज, बट व्हाट आई हैव डन फ्रॉम अर्लियर इज आई गो एंड शेयर माय फेलियर स्टोरीज। मेरा भी मन हल्का होता है, औरों को भी पता चलता है क्या नहीं करना चाहिए, और लोगों को भी लगता है पर्सन ऑथेंटिक है, गड़बड़ किया है वो भी आके बता रहा है। सही बात है ना। राइट। इनफैक्ट अभी भी आपने जो सब आपने बताया अबाउट सो मेनी स्टोरीज वेयर यू यूज्ड टू गेट इनटू फाइट्स एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? बट when you look back, is there any specific thing that you remember that this is a regret that I have from my life? रिग्रेट एज सच अभी ऐसे रहा नहीं, क्योंकि वो रिग्रेट का गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने ग्रेटफुलनेस बना दिया जीवन में। सो जो भी गलत भी हुआ है ना, वो गलत से इतना सीखने मिला कि अभी वो सही हो रहा है जो भी हो रहा है। पर फिर भी अगर एक छोटा मोटा किस्सा भी ले ले तो एक किस्से का मुझे रिग्रेट होता है अभी भी कि मैंने मेरे एक प्रोफेसर को टॉयलेट में लॉक कर दिया था और बाद में मुझे बहुत बुरा लगा था कि ही इज माय टीचर, आई मीन आई शुडंट हैव डन दैट टू हिम करके ऐसे लगा था मुझे। बहुत महीनों तक उसका गिल्ट था अंदर, बट आई कुडंट गो एंड अपोलोजाइज टू दैट टीचर। राइट। वो बहुत देर तक था मेरे मन में ऐसे। राइट। होपफुली इस पॉडकास्ट के माध्यम से उनको शायद मैसेज पहुंच जाए, शायद उनको आज पता चले कि उनको लॉक करने वाला कौन था। Yeah, so we expect you to take inspiration from his learning and not from the initiative. That is so. भैया
this podcast is called Seeking Ithaka, which is like seeking sense of purpose. Oh, So, like I believe that you found some purpose in life. So this is a very important question, I think on which I reflect often. is कि अपने लाइफ का जो पर्पस है वो बनाना पड़ता है या ढूंढना पड़ता है? अपने लाइफ का पर्पस होता है और वही आता है आपके पास. मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, ये कहीं सारे बुक्स में स्टोरीज में लिखा होगा, पीपल आर सर्चिंग फॉर द पर्पस ऑफ देयर लाइफ वगैरह. अरे जब वो आना है वो आ जाता है. आवर जॉब इज टू गेट रेडी. अगर हम ही लाइफ का पर्पस ढूंढे और वो मिल जाए तो पर्पस ढूंढना क्या मतलब बन गया? हम तो उससे पावरफुल ही रहे ना. जो भी चीज हमारे एफर्ट से हमने अचीव की है वो हमसे छोटी ही है. देयर इज नो पॉइंट इन अचीविंग दैट. Right. Just being is important. That is what I like about Gurudev Shri Ravi Shankar ji. What he says, just be. Right. Everything will come to you, to your way. So basically there is no need to go on inventing your purpose. अभी पेड़ कहाँ जाता है उसका लाइफ का पर्पस ढूंढने को? वो खड़ा होता है एक जगह, just being there, that's it. वो शेड मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं, फल मिलते हैं, Right. फूल मिलते हैं, सब तो मिलता है लोगों को. Right. But हमको at least human beings कुछ तो, like you said that you have to just be. हाँ. That कई बार ये just be भी इतना challenging होता है क्योंकि to just be means to be so like at ease, right? हाँ, वो inertia में नहीं बदलना चाहिए. हाँ. just be का. Right. जस्ट बी को आप बिजी भी करके ले लेना. एंगेजिंग योर सेल्फ फॉर योर इनर पीस एंड आउटर डायनामिज्म. Right. कि ये शरीर है, समाज के लिए मिला है, सोसाइटी के लिए, उसको कैसे काम लाना है मुझे. बिकॉज वॉट एवर टैलेंट्स वी हैव इट फॉर अदर्स. Right. वो उनके लिए यूज नहीं किया तो फिर क्या पॉइंट वो टैलेंट रहने का फिर. Correct. और हो जाता है अपने आप. ये दिस पाथ इज सो चार्मिंग ना, वो डेस्टिनेशन मिले नहीं मिले किसको फर्क पड़ता है. That's so true. Yeah. That's so true. I think the destination is the journey itself. Yeah. कई बार ऐसा लगता है. Absolutely. So how important, let's say जैसे आपने बोला कि the answer comes to you, पर उसके लिए हमको थोड़ा रेडी रहना पड़ता है. तो वो रेडी होने के लिए हम क्या कर सकते हैं? Like meditation, is that important, or how can we be prepared for the purpose to come to us? First of all, don't take life seriously. Many people, why they are depressed, why they are experiencing this, what do you say, depression, frustration, agitation, anxiety, everything will come to you without being asked. Right. Why? Because you take life seriously. Life is a game, no? Who takes game seriously? Right. And we don't question the rules of game. Right. Okay. दूसरा, meditation and some breathing techniques. Right. Important है, क्योंकि that is the natural strength it will give us. It's a natural high. Right. Third, be available for others. That's it. Whatever talents you have, you use it for others. Wow. Multiple ways से आता है वो. If you're a smart investor, no, you invest yourself in others. Right. Ordinary people, they invest in properties, money, shares. Right. That is also okay. पैसा ही सब कुछ नहीं है, ये कौन बोल सकता है जिसके पास बहुत पैसा है. वो भी जरूरी है, वो तो करना ही चाहिए. Correct. But invest yourself in others. Right. Returns बहुत अच्छे आते हैं. So basically being available for others, doing a little bit of meditation and taking life lightly. Absolutely, absolutely. Fantastic. 3 tips. No? एक टिप से ऐसे एक क्वेश्चन आया कि अगर आप जैसे 10 साल पहले जाते हैं and you had to give some suggestion to yourself 10 years ago, to your 10 years younger self, what is it that you would want to? 10 साल पहले मैं जाता और फिर बोलता, मैं तभी बोलता अभी से बाल बढ़ाना शुरू कर, अच्छे लग रहे. हाँ, और थोड़ा खाना कम खाना, वेट कम करना चाहिए. I'm being honest. बाकी क्वालिटीज लाइफ को लेकर मेरे को ऐसा बिल्कुल रिग्रेट नहीं है. एवरी मोमेंट इज लाइक सेलिब्रेशन एंड बोनस फॉर मी बिकॉज ऑफ माय गुरुदेव. Right. That's right. So भाई this brings me to this question कि भाई ये spiritual leaders के कई बहुत सारे spiritual leaders कैसे दिखते हैं कि लंबे लंबे बाल होते हैं. इसका क्या रीजन है? Is there any specific reason? There are two sides of it. एक तो फनी वे में बोल सकते हैं, इट्स अ स्टाइल. Correct. That you can recognize. How do you recognize doctor with his apron and stethoscope? So you know that कुछ illness है, इनके पास जाना है. पुलिस, you know, उनको यूनिफॉर्म देख के वहां जाना है. So spiritual leaders का वो यूनिफॉर्म है, वैसे ले लो. Right. कि लाइफ में कुछ गड़बड़ हुआ है तो ये है आपके सामने, इनके पास जाओ. Right. And other ways, if you see, it needs commitment. And in our tropical countries, we know the weather, climate कैसा होता है. Right. So उसमें भी देखो, दाढ़ी बढ़ाना, बाल लंबे करना, उसको मेंटेन करने के लिए भी पेशेंस चाहिए.
एक अलग साइड भी देखना है इसका. Right. इट डेवलप्स पेशेंस. सो तुम्हारा पहले के जमाने में राजा मुकुट पहनते थे, वो इतना हेवी मुकुट पहनने को भी पेशेंस चाहिए. Right. इट्स अ कांस्टेंट रिमाइंडर, ओके आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर्स. Right. I've never seen. I have never thought of it like Yeah. this. I used to always wonder कि भाई why like ये आप यूनिफॉर्म जो आपने बोला वो तो मुझे फिर भी लगा कि हाँ because lot of times for example like I said when I was not in spirituality तो it is so difficult to like understand what like you know कि कोई व्यक्ति के अंदर क्या डेप्थ है स्पिरिचुअलिटी का वो अपनी आईज से नहीं पता चलता है. राइट राइट. वो उनका प्रेजेंस वो भी हर कोई नहीं गेज कर पाता है. तो शायद वो कुछ प्रेजेंस नहीं गेज कर पाते तो एटलीस्ट वो लंबे बाल देखकर ही थोड़ा सा ये विश्वास आता है कि दिस इज यू आर एट द राइट प्लेस. बट ये भी एट द सेम टाइम दिस इज ऑल्सो ट्रू दैट ज्ञान पाने के लिए या अपने आप में मस्त होने के लिए लंबे बाल की भी जरूरत नहीं है. बट मैंने बढ़ाया क्योंकि वो स्टाइल है, मुझे अच्छा लगता है. मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है. ऑपोजिट वैल्यूज और कॉम्प्लीमेंट्री शेयर्स. मतलब एक्चुअली वी शो अदर्स कि यहाँ पर लंबे बाल वाले भी कूल है, छोटे बाल वाले भी कूल ही है. बाल नहीं है वो भी कूल ही है. But any so I Gurudev has had a very deep influence on your life. Other than that, has there been any individual who has played a very important role in your life, who has shaped your life? Other than Gurudev, if you see, my ideal person is Chhatrapati Shivaji Maharaj. बचपन से ही उनके बारे में स्टोरीज सुन के मेरा जीवन का दिशा हो गया ऐसे. सो उनका स्टोरीज आज भी मैं सुनता हूँ. आई गेट गूज़बम्स, आई गेट इंस्पायर्ड. The way he has worked in his life, right. The way he was available for others. Right. Many people think he's just a warrior, but it is not like that. He was a good person, good human being. हाँ मतलब मुझे तो सिर्फ वॉरियर स्टोरीज ही पता है. Because people are interested in fights, no? Conflicts. Yeah, there are many other sides of Shivaji Maharaj. Can you share like? Yeah, he was very loving, very caring. आज जो हम रोड की बात करते हैं, क्वाड्रेंगुलर वे की बात करते हैं, रोड्स उस वक्त बिल्ड करना, कौन से रीजन में पानी कहाँ आएगा, क्या लोगों की समस्या है, वो पूरा लाइफ अपने वॉर फील्ड में नहीं रहे हैं, वो फील्ड पे रहे हैं. राइट. बीच बीच में वॉर हुए तो लोगों के लिए अवेलेबल थे जिसकी जो जरूरत है. और पूरा लाइफ आप देखोगे उनका, स्त्री का कभी भी निरादर नहीं किया उन्होंने, हमेशा सम्मान किया. एक भी उनके लाइफ स्पैन में आप देखोगे ऐसा एक भी स्टोरी नहीं है जहां पर स्त्री को लेकर कुछ गड़बड़ है, कंट्रोवर्सी. नेवर नेवर ही हैज. सो विमेन एम्पावरमेंट तब से चल रहा है. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. इट इज वंडरफुल. बिकॉज़ उनको बनाने वाली भी जिजा माता ही थी, उनकी माँ. सो वैसे संस्कार थे ही उन पे. राइट. एंड हाउ व्हिच ब्रिंग मी टू द फैक्ट दैट हाउ इंपॉर्टेंट हैज द रोल of your mother, your father, your family been in your journey? Of course, yes. Today I am whatever I am today. It's because of my parents also. No doubt about it. What I have learned from my father is जो हमारा है वो कभी जाएगा नहीं, जो गया कभी मेरा था ही नहीं. ये इतना अच्छे से उन्होंने उनके प्रैक्टिकल वे से, बिहेवियर से समझाया. उनको ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी. उनको देख के मैंने ये सीख लिया है. राइट. आज उनको गुजर के 16 साल हुए, पर उनकी याद निकालते या रास्ते पे जब हमारे यहाँ से जाता हूँ, वो भाजी वाले वगैरह सब्जी वाले भी याद निकालते हैं उनकी. दिस इज द टोकन नो ऑफ योर लव. वो मिलता है. एंड माय मॉम इज अ फाइटर. अगेंस्ट ऑल ऑड्स शी हैज फॉट. गांव में जर्नी शुरू हुई थी, अभी तक जिस तरह से मैंने उसको देखा है, सो शी इज ऑल्सो एन इंस्पिरेशन फॉर मी ऑफ कोर्स. वाह, वंडरफुल. आई थिंक हमारे पेरेंट्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है हमको बनाने में. वो टीनेज में तो नहीं समझ में आता, बट धीरे धीरे जैसे और बड़े हो जाते हैं, पेरेंट्स हो जाते हैं, तब तो दैट इट बिकम्स सो इम्पोर्टेंट. सो ट्रू, सो ट्रू. And other than people, any you said you're not into books, but any movies? I know you liked some, you at least watched some selected movies. So any movie that has really inspired you, anything like that? Yeah, anything else from popular culture? Movie as such इंस्पायर ऐसे नहीं होता है कुछ मूवी से, पर मुझे ऐसे लक्ष्य जैसे मूवी अच्छे लगते हैं. राइट. लक्ष्य जैसे या लगान जैसे कि गोइंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स, यू आर फाइटिंग एंड देन यू आर राइजिंग लाइक अ फिनिक्स. वो मूवीज देखने अच्छा लगता है मुझे. Right. It's like the story of your life. हाँ. This is everybody's life if you see in that manner. हर कोई अपना अपना स्ट्रगल, अपना अपना फाइट लेके ऊपर आ ही रहा है.
So true. ना, सिर्फ उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए बस, और कुछ नहीं. So true. So ना. true. बाकी मूवीज ऐसे देखता हूँ, याद रहता है, इंप्रेशन रहता है, ऐसे नहीं है, बट Right. And any one quality you think that every youngster today should have? That is one एक quality ऐसा जो उसकी life that can completely change our lives. ह्यूमिलिटी होना चाहिए. तुम किसी भी सेलेस्टियल हाइट पे क्यों ना बैठे हो, अगर नम्रता नहीं है जीवन में तो वही हाइट उतना ही जल्दी गिरा देगा नीचे. Right. Yeah. That's so important. Yeah. So important. क्योंकि ये सबसे underestimated है. People want fame, people want money, but वो पहुंचने के बाद क्या करना है वो And we नहीं have मालूम seen होता है. many examples in sports life, in movies. वो एक हाइट पे जाते हैं लोग and they give up their humility. Correct. ना, one thing we need to understand that whatever we are today, it's because of other people's contribution. Right. Right. जो हमारे लाइफ में उन्होंने प्ले किया है, So true. वो निकाल दे तो हम शायद वहां होंगे नहीं जहां आज हम हैं. So true. So true. Next question for you is what next for Amol Wagle? Next for me is living the life, that's it. ऐसा कुछ है नहीं रे, मैंने सच्ची ऐसा कुछ सोचा नहीं है कि मुझे 10 साल बाद मुझे यहाँ देखना है, वहां देखना है. बस वन थिंग इज क्लियर, आई एम हियर दैट आई विल कंट्रीब्यूट. गुरुदेव को देख के मुझसे जो बन पड़ता है मैं करूंगा, और नेक्स्ट, नाउ और पास्ट इज नथिंग बट माय गुरु. अदर देन हिम आई डोंट सी एनीथिंग एल्स. So absolutely one pointed. ऑफ कोर्स वन पॉइंट, एक सब्जेक्ट, बाकी सब्जेक्ट का मुझे इतना ज्ञान नहीं है. एक सब्जेक्ट का मैं पक्का खिलाड़ी हूँ, और वो मेरा सब्जेक्ट है मेरा गुरु. Wow. उसमें कभी फेल नहीं होगा, आई एम श्योर अबाउट इट. बिकॉज उसमें भी मॉडरेटर, टीचर, एवरीथिंग इज माय गुरु ओनली. Right. Hey, आपके जो like I have seen a lot of your YouTube videos, the different shlokas that you say, the different stories. And generally क्या हम stories के बारे में बात करते हैं, जब spiritual stories के बारे में, like गणेश जी का story है, how he was born, तो उसका कोई meaning नहीं समझ में आता है. Okay, so like elephant का सर काट के लगा दिया, but when we listen to Bhaiya's version of it, he explains the whole spiritual significance behind it, right? So ये जो अलग अलग stories है, और ये how do you like decode it spiritually? Like what is that secret? It just happens. I think I have worked on it, Uh-huh. and now it is working on everything. ऐसे हो गया वो. So how have you worked on it? मैं स्टोरी सुनता था. I listened to Gurudev's talk, many talks. Right. मैंने पढ़ा नहीं है, पर मैंने मेरे गुरुदेव को बहुत सुना है. Right. और लकीली, फॉर्चुनेटली, वो जो उनको सुनता हूँ वो मुझे याद रह जाता है. Right. तो वो सुन के फिर एक इंसाइट जैसे मिल गया. अभी वो भी उन्हीं की वजह से, गुरुदेव की वजह से. तो इंसाइट मिल गया कि स्टोरी कोई बोलता है तो स्टोरी में लोगों को रुचि आता है, बट उसके पीछे जो हिडन मैसेज होता है उसमें ज्यादा रुचि आती है मेरे को. Right. 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 शायद स्टोरी याद नहीं रहे, पर वो लर्निंग, डिकोडिफिकेशन याद रह जाता है वो. Right. So I think for all of you also, what we'll do is in the first comment you can say links to Amol Bhaiya's YouTube channel, so you can definitely go there, see the amount of knowledge that he has put out for everybody. It's incredible. Especially you listen to all the decoding that he has done of Indian itihas and our stories. It's amazing. It's amazing. So Bhaiya, the final question for you is, what advice would you like to give to youngsters, right? Like everybody is trying to find some meaning, कुछ important करना चाहते हैं लाइफ में, right? लोग अलग अलग जर्नीज पे है, तो ऐसा कोई एक एडवाइस जो कोई किसी भी जर्नी पे उसको काम आ जाए. मस्त रहो, मस्ती में रहो, बस, और क्या बोलना है. बिकॉज योर 20s विल डिसाइड योर 30s, योर 30s विल डिसाइड योर 40s. सो आज ऐसे कुछ मत करना शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए कि लॉन्ग टर्म पेन आ जाए लाइफ में. हाँ, जैसे गुरुदेव श्री रविशंकर जी बोलते हैं, ये 5 क्वालिटीज हमें होना चाहिए: समदर्शी, सत्यदर्शी, दूरदर्शी, पारदर्शी और प्रियदर्शी. ये बन के रहो आप. समदर्शी, सबको इक्वली ट्रीट करो, डोंट बी बायस्ड. ओके. दूरदर्शी, हैव फार साइट इन लाइफ. प्रियदर्शी, आप सबके प्रिय हो जाओ, ये है, ये मान के चलो आप. पीपल लव यू वेरी मच, ये मान के चलो. हाँ. फिर पारदर्शी, बी ट्रांसपेरेंट, डोंट बी मैनिपुलेटिव. ऑफ कोर्स यू कैन बी डिप्लोमैटिक, बट बी ट्रूथफुल. ओके. और दूरदर्शी हो गया. सत्यदर्शी, सत्य इज नॉट व्हाट mere words. सत्य मतलब क्या? Meditate for a while, do some breathing techniques which will connect you to your own core.
और जब अपने आप से आप कनेक्टेड हो ना, लाइफ में कनेक्शंस ऐसे बनते हैं, फोन में कॉन्टेक्ट रखने की जरूरत नहीं है फिर। हाँ, ये 5 क्वालिटीज को लेके चलो, आप लाइफ में रिग्रेट नहीं आएगा। और जैसे श्रेयांश अच्छा काम कर रहा है वैसे आप करते रहोगे। So this is a nice initiative, Shreyans. I really liked Ithaka. Yeah. So Thank the you, Kiran. path is so charming. Yeah. Yeah. Whether we get our destination or no. Yeah. True, Very true. nice. Very nice. Wish you all the best for this Thank you, initiative. I'm so happy that you came for this, and I'm honored that I've been able to host you on my podcast. Same here. And Same. the kind of insights that you have given about your life and so many things that I did not know about. So that has been amazing. Yeah, and he's been my go-to person for anything that I wanted in life. Kabhi anything, any botheration. You know, sometimes when you're just so bothered and you just want to speak to somebody, like the best person is I'll just call Amol Bhai, and whatever problem I have, no, it just dissolves. So it's great that I have you as a mentor in my life, and you're always available for me. Thank you so much for this. Thank you.